الجبار المتكبر الخالق البارئ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سل رحمک ولو بشربت ماء شربت من ماء سل رحمک ولو بشربت من ماء۔ عزیزان گرامی، اس ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے بعد، رب العزت کی خاص رحمت کو حاصل کرنے کے بعد، ہم اپنی باقی زندگی کو کس طرح گزاریں ماہ رمضان کے بعد، خصوصاً عید اور عید کے بعد ہماری زندگی کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خصوصاً خود عید پہ صلہ رحم کا خاص خیال رکھا جائے۔ صلہ رحم کے بارے میں جتنا آیات و روایات ہیں، یقین جانیں جب انسان معاشرے میں قطع رحم کو دیکھتا ہے تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جتنی ہماری پریشانیاں ہیں ان کا زیادہ تر حصہ قطع رحم کی وجہ سے ہے، کیونکہ صلہ رحم کے حوالے سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا آجل الطاعت ثوابا بصلۃ الرحم لصلۃ الرحم، کہ ثواب اجر کے اعتبار سے سب سے جلدی جس عمل کا انسان کو ملنے والا ہے خالق کی طرف سے اجر و ثواب، وہ صلہ رحم ہے۔ اسی طرح قطع رحم پہ بھی سب سے جلدی انسان کو تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم، کہ ہم کوئی چیز جانتے ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ جو عمر میں اضافہ کا سبب ہو، صلہ رحم سے زیادہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض واقعات بیان کیے گئے ہیں، روایات کے مضامین میں یہ مطالب ہیں کہ انسان کی زندگی 3 سال باقی رہ گئی ہوتی ہے، وہ صلہ رحم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عمر میں 30 سال اضافہ فرما دیتا ہے، اور خدا نہ خواستہ 30 سال عمر ابھی باقی ہوتی ہے، قطع رحم کرتا ہے، جلد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، 3 سال بھی زندگی نہیں کر پاتا، جبکہ 30 سال اس کے لیے یہ زندگی لکھ دی گئی تھی۔ اس قطع رحم کی وجہ سے اس کی باقی ماندہ جو زندگی ہے، نہ فقط یہ کہ اس میں برکت نہیں رہتی بلکہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں صلہ رحم کی طرف قدم بڑھانے کے لیے، ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے جو فرمایا ہے بہت ہی کام کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک عمل کی ضمانت تم دو، میں تمہیں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے مولا علی، اے مشکل کشا، کس چیز کی ضمانت ہو تو آپ 4 چیزوں کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ آپ جیسی ہستی جو ضمانت لے گی یقیناً حق ہے، وہ انسان کو ضرور ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے صلہ رحم کی ضمانت دے کہ عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ
सिला रहम करेगा तो मैं उसे 4 चीजों की जमानत देता हूं। पहली चीज, रिश्तेदारों में वो महबूब होगा, खानदान में महबूब फर्द होगा, सब उससे मोहब्बत करेंगे। दूसरी चीज, उसके माल में फरावानी होगी, माल उसका बढ़ता रहेगा, कभी माल में कमी वाक़ई नहीं होगी। तीसरी जमानत तूले उम्र की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तूले उम्र अता करेगा। चौथी जमानत जो कामयाबी की जमानत है, आपने फरमाया बहश्त में जाने की उसकी जमानत मैं लेता हूं। अजीज़ान गिरामी, सिला रहम करने के मुकाबले में वो 4 चीजें अता हो रही हैं जिनकी तलाश में हम दिन रात सर्फ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अजीज और रिश्तेदार हमसे मोहब्बत करें, हम उनके महबूब फर्द हों, तो मौला कहते हैं मैं जामिन हूं। हम चाहते हैं माल में इजाफा हो, माल में कभी कमी वाक़ई ना हो, मौला कहते हैं मैं जमानत ले रहा हूं कि माल में इजाफा होगा, कभी कमी वाक़ई नहीं होगी। हम चाहते हैं तूले उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करे सेहत और सलामती के साथ, मौला कहते हैं तूले उम्र की जमानत मैं ले रहा हूं। हम चाहते हैं आखिर में कामयाब होके बहश्त में जाएं, आतिश जहन्नम से हमें निजात मिल जाए, मौला फरमा रहे हैं कि बहश्त में जाने की जमानत मैं ले रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, यहां मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या अर्ज करना चाह रहा हूं। 2 भाई, उनकी मुश्तरका एक ज़मीन, उसमें वो काम करके जो भी उन्हें फसल मिलती थी उसे वो आपस में आधा आधा तकसीम किया करते थे। एक भाई शादीशुदा था, एक गैर शादीशुदा था। माली एतबार से इतने मजबूत नहीं थे। गैर शादीशुदा शादी इसलिए नहीं कर पा रहा था कि उसके पास माल इतना होता था जिससे वो अपना साल का गुजर बसर कर सकता था। गंदम की फसल का वक्त आया, इन्होंने फसल तैयार हो गई, उसे काटा और दोनों ने आधा आधा हिस्सा करके रख दिया। किसी काम से बड़े भाई को कहीं जाना था, उसने कहा माल की तुम इस गंदम की, इस अनाज की रखवाली करो, मैं फिर आता हूं तो अपना माल ले जाऊंगा। जब वो भाई चला गया, छोटे भाई के जहन में आया मेरा भाई है, बड़ा है, अय्यालवार है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है, मैं एक ही फर्द हूं, अनाज हम दोनों का मसावी और बराबर है, क्या ही बेहतर होगा कि मैं अपने माल से इस रात की तारीकी में इसके माल में इजाफा कर दूं। ये जब ले जाएगा, मेरी ये नेकी इसे मालूम भी नहीं हो, लेकिन इसका गुजर बसर आसान हो। गोया उसने इसी तरह इस काम को अंजाम दिया। इत्तफाक से जब रात को बड़ा भाई आया तो उस छोटे भाई को कोई काम था, उसने कहा मैं थोड़ी देर में आता हूं, मेरे अनाज का ख्याल रखिएगा। अब बड़े भाई के जहन में आया ये इस वक्त मौजूद नहीं है, फक्र की वजह से शादी नहीं कर पा रहा, क्या ही बेहतर है कि मैं अपने हिस्से में से इसके हिस्से में इजाफा करूं ताकि इस दफा इसका माल पहले से ज्यादा हो, ये अपना साल भी गुजार ले और शादी भी कर ले। तो इस नीयत के तहत बड़े भाई ने अपने माल से उठा के उसके माल में माल अनाज का इजाफा कर दिया। रब्बुल इज़्ज़त को इन दोनों का यह अमल बहुत पसंद आया। अब जब वो छोटा भाई आया, दोनों अपना अपना माल उठाने लगे तो इन्होंने देखा इतना माल में कभी बरकत नहीं थी। जो था नजर आ रहा था, वो जहन में था कि इसको उठाने में इतना वक्त लगेगा, देखा नहीं 2 बराबर वक्त खर्च हो रहा है। और जितना हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अनाज अता फरमाता था, इस साल 2 बराबर से भी ज्यादा है और दोनों के मसाइल हल हो गए। अजीज़ान गिरामी, एक अमल है जिसे हम अंजाम देते हैं, एक है खालिक उसे पसंद करके उसमें इजाफा फरमाता है। और जिस तरह खालिक इजाफा फरमाता है, किसी की ताकत नहीं है उस तरह से इजाफा कर सके। इसी तरह से शेख रजब अली खैयात, ईरान के निहायती मारूफ फर्द, परहेजगार, मुत्तकी, एक आम इंसान होते हुए लेकिन मुकम्मल मुतीय फरमा बरदार रब्बुल इज़्ज़त व अहले बैत
बाअमल शख्सियत। उसका बेटा नकल करता है कि मेरे बाबा के पास एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आया करता था। अब वो चंद दिनों से जब आ रहा था तो बहुत परेशान दिखाई देता था। एक दिन मेरे बाबा से उसने कहा कि मेरी परेशानी बढ़ गई है, मेरे पास इस वक्त अच्छे खासे घर तो मैंने बना लिए हैं, बनाने के लिए मैंने कर्ज बहुत लिया था, अब मेरा माल बिक नहीं रहा और जिनसे कर्ज लिया है उनसे छुपता फिर रहा हूं, मेरे लिए कोई दुआ करें। कहते मेरे बाबा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा जाके अपनी बहन को राजी करो। उसने कहा किबला वो तो मुझसे राजी है। कहा नहीं, वो तुमसे राजी नहीं है, सोचो तुमसे कोई खता हुई है उसके हक में। थोड़ी देर उस इंजीनियर ने सोचा और फिर कहा कि हाँ, जब वरासत का वक्त आया था मेरी बहन का जो हिस्सा था वो मैंने जुदा किया था, फिर उसे दिया नहीं। तकरीबन 1500 तुमान बनता था उसका हिस्सा। उठ के गया बहन के यहां, उसे 5000 दिए। वापस अगले दिन आया, कहा कि जैसा कि आपने फरमाया था मैंने उसे 5000 दिए हैं, अब वो मुझसे राजी है। ये शेख का बेटा कहता है कि मेरे बाबा ने फिर उसके चेहरे की तरफ देखा और देख के कहा वो अब भी राजी नहीं है। कहा नहीं, मैंने 5000 दिए, वो राजी है। कहा वो अब भी राजी नहीं है। ये बताओ तुम्हारी बहन का अपना घर है या किराए के घर पे रहती है? तो उस इंजीनियर ने कहा उसका अपना घर नहीं है, किराए के घर पे रहती है। तो मेरे बाबा ने कहा उसे अपने घरों में बेहतरीन घर उसके नाम कर दो, तब उसकी रजाइयत हासिल होगी। तो इस पे उस इंजीनियर ने कहा कि किबला में ये कैसे कर सकता हूं, ये जो मैंने घर बनाए इसमें मेरा एक शरीक है, उसकी इजाजत के बगैर कैसे कर सकता हूं? तो मेरे बाबा ने कहा अपने हिस्से से कर सकते हो, मुझे यही बताना था, मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अगले दिन ये इंजीनियर गया, उन घरों में से एक घर ये अपनी बहन के नाम करके आ गया। फिर आके कहा किबला मैंने वो काम अंजाम दे दिया है। कहा तुम्हारे मसाइल भी हल हो गए हैं। एक ही हफ्ते में उसके सारे घर बेहतरीन कीमतों में बिक गए, कर्ज अदा कर दिए और आसूदा जिंदगी करने लगा। अजीज़ान गिरामी, हम भी अपनी जिंदगियों का एक मरूर करें, देखें अगर हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं तो उसका सबब कहीं खुदा न खास्ता क़त्ए रहम तो नहीं है, क्योंकि सिले रहम की बहुत ताकीद है, क़त्ए रहम से बचने की बहुत ताकीद है। मेरी दुआ है बारे इलाहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सिला रहम करने वालों में हमें करार दे, क़त्ए रहम से हमें महफूज फरमा, हमारे आका व मौला को हमसे राजी व खुशनूद फरमा, उनका ज़हूर पुर नूर जल्द फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।